Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to discuss here the numericals, rather I can solve the numericals related to cells. But dear students, here cells are non-identical cells. Dear students, meantime I will clear you the concepts related to short circuit, related to open circuit, and related to ideal. What is related to the concept that is related to the cell, that is ideal concept. What is an ideal cell? Okay, very nice. So let us come to my own point, and here I am going to discuss, dear students, cell. So cell, what is cell, dear students? We know everyone is familiar with the cell. That is, cell is a device which converts chemical energy into electrical energy, and cell is a device which maintains constant potential difference between the electrodes of a cell. We don't have to go through these things, but dear students, we have to discuss here some important points. These important points are like this. The first important point is, dear students, like this. See here. We know when cell is in closed circuit. When we say that cell is in closed circuit. First point, when we say that cell is in closed circuit, we say that a cell is in closed circuit when current is drawn from it, when current is entering through it. First of all, let us here discuss what is discharging of a cell, and then after that I will here discuss what is discharging of a cell. So better see here. तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे. Let us take this as a point A, and here it is a cell of positive. Here it is internal resistance, और बेटा ये point B है. So let here at point A, potential of positive electrode is positive, and negative potential of B is VB. And dear students, what is R? R is its internal resistance, and E is the EMF of a cell. When we say that it is in closed circuit, suppose this is connected to an external resistor R. Okay, dear students, no current is drawn from the cell. Current is drawn from the cell like this. So here, when closed circuit, here I will discuss these in terms of two things. One thing is like this, one way is like this, dear students, that is discharging mode. Discharging mode. What is, dear students, discharging mode? Discharging mode means, dear students, when current is drawn from the cell. When current is drawn from the cell. बेटे क्या लिखा मैंने पहला? When current is drawn from the cell. That is, here it is discharging mode of the cell. See dear students, current यहाँ क्या? Current यहाँ ड्रा हो रही है. Current cell में. तो ये क्या हो रही है? Dry, and it is flowing through the external resistance R. Here see dear students, now what is terminal potential difference of a cell? ये part में circuit का लूँगा, ये part. I will take this part of the circuit. See here. Here, the potential difference between points A and B is nothing. It is the terminal potential difference of a cell. See here. Now see. Now, if I am going from कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा? From A to B using KVL. See here. मैं जाऊँगा A to B. कहाँ जाऊँगा बेटा? From A to B. I will proceed here from कौन सा part ले लिया? पहले बताइए क्या part ले लिया? क्या part? ये part. I will take dotted part of the circuit. ये part ले लिया. बेटे ये पार्ट ऑफ द सर्किट मैंने ले लिया. ओके, वेरी नाइस. सी नाउ, सी डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहां से स्टार्ट करेंगे, यूज करेंगे फ्रॉम ए टू बी केवीएल. तो यहां क्या है? VA. व्हाट इज VA? दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड इज आल्सो पॉजिटिव potential of the positive terminal of the cell. And here, dear students, is when I am going from, suppose I am moving from here from point A to B. To give the sign conventions here in case of Kirchhoff's voltage law. See dear, तो ये VA है, तो बेटे ये इसका EMF क्या लिखेंगे? माइनस VA. ये VA है बेटा, तो इसका जो है ना EMF नेगेटिव होगा, because we are going from high potential to low, so decreasing potential, तो take TMF of the cell to be as negative. और बेटे यहाँ करंट आ रही है ना, ऐसी आ रही है करंट, तो it is going from high to low, तो यहाँ हम लिखेंगे plus IR. Why? Because we are going from low potential to high is equal to potential at point B. See dear, तो बेटे dear पर ये किसके बराबर आएगा? VA, तो इसको यहाँ भेजेंगे माइनस VB बनेगा, इज इक्वल टू इसको यहाँ भेजेंगे E minus IR. But what is this VA minus VB? This is terminal potential difference between, that is the potential difference between the terminals of between the positive terminal and negative terminal. Okay, so dear students, what is this here? Okay dear students, very nice. तो देखो बेटा क्या है यहाँ, देखो. See dear,
सीडीएफ तो ये किसके बराबर आएगा, बट वी ए माइनस वी बी इज नथिंग, इट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल. व्हाट इज दिस, टर्मिनल पीडी ऑफ ए सेल. तो देयरफॉर वो किससे डिनोट करते हैं बेटा, वो V से करते हैं. V मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल किसके बराबर, E minus IR. But when it is, when cell is, when we are drawing current from the cell and here cell is in a closed circuit. Okay, very nice. See here, अब देखो मेरी तरफ, अब क्या है दूसरी कंडीशन, here V is less than E. Here terminal potential difference of a cell is less than the EMF of cell by an amount equal to the potential drop across the internal resistance of a cell. Hope you have got this. Now next point here is in the discharging, in the charging mode. अगर हम इसी सेल को क्या करेंगे आप, चार्जिंग, क्लोजर सर्किट ही है, क्लोजर सर्किट ही है, करंट चल रही है सर्किट में लेकिन ड्रा हो रही है, एंटर हो रही है सेल में. चार्जिंग. नाउ सेकंड केस इज चार्जिंग ऑफ ए सेल, चार्जिंग मोड ऑफ ए सेल. चार्जिंग मोड लिखो या चार्जिंग मोड ऑफ ए सेल. जब हम सेल को चार्ज करेंगे किसी चार्जर से, सीडीआर. ओके, वेरी नाइस. सीडीआर स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं यहाँ क्या करूंगा बेटा, यहाँ ऐसे, यही बिल्कुल यही बात, यही और यहाँ क्या ऐसे. This is representation of a cell and this is R is internal is EMF of cell and this is A and this is B. Now what we do? We connect it to a charger. We connect it to a, बेटा किसे करते हैं कनेक्ट, किसे, चार्जर से. और चार्जर का पॉजिटिव हमेशा बेटा पॉजिटिव के साथ सेल, जब सेल को चार्ज करना होता है. तो यहाँ बेटा इसका जो है ना, यहाँ मान लीजिए कि ये पॉइंट B है, यहाँ ये B पॉइंट है. ओके, एंड पोटेंशियल एट B is point VB and potential at point E is VA. So see here current is not drawn from the cell. We are here charging it. It is a charger. So we are charging, current is from charger to the cell. That is, it enters into the positive terminal. When it enters into the positive terminal of the cell, then at that time see here IC current जा रही है. Now applying on the spot. इस spot में क्या करेंगे, इस spot में applying KVL on the spot. See here students, applying क्या करेंगे, अप्लाई करो KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. कहां से कहां तक, फ्रॉम A to B. कहां से कहां तक जाएंगे, A to B, along this, ऐसे जाएंगे A to B. सी नाउ, अब यहाँ क्या है, वोल्टेज VA. आई बात समझ में, VA बेटा. लेकिन जब यहाँ क्या, वी आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, दैट इज वी आर गोइंग फ्रॉम डिक्रीजिंग पोटेंशियल, सो टेक EMF ऑफ द सेल टू बी एज नेगेटिव, माइनस ले लिया. लेकिन यहाँ करंट भी ऐसे जा रही है जहां हम जा रहे हैं फ्रॉम A to B. तो वी आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो. तो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, पोटेंशियल तो माइनस IR लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल माइनस IR लिखेंगे. इज इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ फाइल ले आएगा VB के बराबर. किसके बराबर आएगा, VB. कुछ आई बात समझ में. तो बेटे यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे VA, इसको यहां साइड लाएंगे, VB इज इक्वल टू, इसको यहां लाएंगे E प्लस IR. ये दोनों प्लस बनेंगे, माइनस EB प्लस और माइनस IR में प्लस IR. तो देयरफॉर बेटे यहां लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR. कुछ आई समझ में. व्हाट इज VA माइनस VB, इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए TPD. दैट इज VB. व्हाट इज VD, V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल. तो ये V किसके बराबर आएगा बेटे, E प्लस IR. E plus IR. V is the potential of the positive terminal of the cell and VB is the potential of the negative terminal of the cell. I am resistance internal resistance R. So VA minus VAB is terminal, that is difference of the positive terminal and difference of the negative terminals, that is potentials. Okay, so that is why it is known as terminal potential difference of a cell, VA minus VB. ये किसके बराबर, A plus IR. तो यहाँ क्या है, V here is greater than E by an amount equal to the potential drop across the internal resistance. Okay, have you got this? Okay बेटा, आई बात समझ में. तो यहाँ क्या है, दूसरे केस में क्या है, V is terminal potential difference is greater than E. लेकिन where we charge the cell in charging mode, लेकिन कितना ज्यादा है, by an amount equal to the potential drop across the internal resistance of a cell. Okay, nice, मजा आया. तीसरा केस क्या है इसी सेल का, तीसरा थर्ड केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस डियर स्टूडेंट्स. थर्ड केस इज लाइक दिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी अगर इसी में चाहे चार्जिंग मोड हो या डिस्चार्जिंग मोड में हो, अगर बेटा यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू 0, I क्या लेंगे 0, दैट इज ओपन सर्किट किसको कहेंगे, ओपन सर्किट. That is when no current is drawn from the cell. When no current is drawn, that is current is 0. तो पता है V किसके बराबर आएगा, V इस आएगा बराबर E. चाहे चार्जिंग, ये कौन सा मोड था, चार्जिंग मोड. तो चार्जिंग मोड में भी बेटा अगर
क्या हो, मैं यहाँ चार्जिंग तो मैं यहाँ चार्ज डिस्चार्जिंग, क्योंकि करंट ही ना ड्रा हो रही है ना एंटर हो रही है, करंट हो रही है जीरो, तो ई भी किसके बराबर आएगा, ई, ठीक है ना, क्योंकि v है ना e माइनस आर, जब करंट ड्रा होती है, जब करंट इज ड्रॉन, एंड व्हेन i इज इक्वल टू जीरो, जब कोई करंट ड्रा नहीं हो तो v किसके बराबर आए, e, वेल कोई करंट चार्ज नहीं कर रही है तो i इज इक्वल टू जीरो, चार्जिंग मोड में i कोई करंट यहां नहीं जा रही है तो जीरो, that means when it is cut or when we do not connect it to the external charger or when we do not connect it to the external circuit, then at that time I is equal to जीरो, V is equal to E, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बारे होती है, EMF FSL, कब होती है, कब बेटा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, व्हेन वी डू नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सेल। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी नाइस। शॉर्ट सर्किट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, what is their short, dear students, what is short circuit, okay dear students, see what is short circuit, dear students, short circuit is, यहां मैं बेटा दिखाऊंगा आपको, देखो बेटे क्या है, what is here short circuit, okay, अगर बेटे मैं ऐसे लूंगा, देखो बेटे क्या है, यहां मैंने ले लिया ऐसे, अगर मैं यही ए पॉइंट है और बेटा यहां मैंने ऐसे किया, और बेटा मैंने यहां ले ली एक सेल ऐसे, और बेटा ऐसे ये, और बेटा ये बी पॉइंट है, देखो बेटा क्या है, अगर इसका ईएमएफ ए है और बेटा इसकी इंटरनल आर है, तो मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां डायरेक्ट कनेक्ट किया ए पॉइंट को किसके साथ, बी के साथ, और आर क्या है इस वायर की जीरो, और वी हियर देखो बेटा क्या है, यहां देखो क्या है, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बट लाइक दिस एंड लाइक दिस, और बेटा ऐसे आ रही है यहां ऐसे, बट हियर इज हियर, यहां क्या हो रहा है बेटा, देखो क्या है, यहां ये हो रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, क्यों, क्योंकि यहां हियर सी VA is equal to VB. Here VA, because at this point potential is, the positive potential is this. Here यहाँ भी VA, यहाँ भी VA, यहाँ भी है, यहाँ भी VA, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ ये किसके बराबर है, V is equal to किसके बराबर है, VB, या यही यहाँ भी VB, यहाँ भी VB, यहाँ भी VB, यहाँ भी VB, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ VA is equal to VB, therefore लेकिन डेफिनेशन क्या है, टर्मिनल यहाँ जाएंगे बेटा, आपको पता है कि VA माइनस VB यहाँ किसके बराबर आया था, E माइनस आया, डिस्चार्जिंग मोड, VA माइनस VB किसके बराबर बेटा, E माइनस यहाँ जब करंट आ जा रही है, ओके वेरी नाइस टीयर्स। सीरियल, ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटे क्या है, VA और ये VB है, और यहाँ क्या आर है जीरो, तो V क्या है, V इज इक्वल टू VB, तो देयरफॉर बेटे ये किसके बराबर जीरो, और बेटे यहाँ क्या आएगा, E माइनस IR, देखा क्यों, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ P आती है जीरो, क्यों आती है, क्योंकि VA होता है बराबर VA होता है, और R क्या होती है, R होती है जीरो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होती है, तो यहाँ जीरो, VA इज इक्वल टू VB के बराबर, तो ये जीरो है, इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E किसके बराबर आएगा बेटा, इसको यहाँ ले लो, तो E इज इक्वल टू IR, तो E किसके बराबर है, IR, तो I किसके बराबर आएगा, E बाय R, लेकिन कब, किसमें, शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है, I क्या होती है, मैक्सिमम करंट होती है, और वो मैक्सिमम करंट किसके आती है, E बाय R, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ क्या है, एक बात यार, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, जीरो, ईएमएफ जीरो नहीं होता है, क्या होता है, जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, याद रखना, और R भी क्या होता है, जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बार नीट में जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड आते हैं ना क्वेश्चन, बताइए कब करंट मैक्सिमम होती है, शॉर्ट सर्किट में, ओके वेरी नाइस। इस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, जीरो, और I किससे होता है, E बाय R, ओके, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किसके, पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी टू द नेगेटिव, और एक ऐसी
बाहर से कनेक्ट करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो 0, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। वेरी नाइस डियर स्टूडेंट, ओके वेरी नाइस। और उसके बाद है आइडियल सेल किसको कहते हैं? आइडियल सेल किसको कहते हैं? कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ। आइडियल सेल क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल सेल किसको कहते हैं? आइडियल सेल वो सेल होती है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। क्या बेटा होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, नहीं होती है। किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होती है, लेकिन अंडर आइडियल कंडीशंस में लेते हैं, थ्योरेटिकली लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होती है। अगर बहुत कम हो ना सेल की रेजिस्टेंस, इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस को मानते हैं कि कुछ भी नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को 0 लेंगे तो इस वक्त सेल आइडियल सेल है। हाँ, कैसे लिखेंगे? ऐसे यूजुअली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सेल। ऐसे बेटा यहाँ है, ये ईएमएफ है, ये आर है बेटा, ये ए पॉइंट है, इसका पोटेंशियल वी है और इसका पोटेंशियल वी बी। ओके वेरी नाइस, आई बात समझ में। अगर इसी सेल को ऐसे लिखेंगे, नहीं दिखाएंगे, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मानेंगे? 0, तो बेटा ये ऐसे आएगी वी ए, हाँ ये वी बी या ए है या, तो इस सेल ऐसे, इसको आइडियल सेल कहते हैं। क्यों आइडियल सेल? क्योंकि यहाँ मैंने आर क्या ले लिया बेटा? आर क्या ले लिया? 0। ओके, आई बात समझ में? दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सेल। ओके वेरी नाइस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। नाउ आई एम डूइंग हियर एन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू combination of cells, but when cells are non-identical, see dear students, थोड़ा एक क्वेश्चन करेंगे, या अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटा ऐसे है, तो न्यूमेरिकल बेटा ऐसे है कि अगर मैं एक सर्किट लूंगा, यहाँ ऐसे मैंने एक सेल ले ली और यहाँ बेटा इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बेटा ऐसे ले लिया और एक सेल यहाँ ले ली और यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे बेटा आता है समझ में? हाँ हाँ सर आई बात है। ये 10 मैंने ले लिया, 10 वोल्ट, और बेटा यहाँ ले लिया मैंने मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी ले ली, और यहाँ 2 ओम्स ले लिया, और बेटा मान लीजिए यहाँ भी 2 ओम्स ले लिया, और ऐसे बेटा किया, और एक और यहाँ लगा देंगे ना, यहाँ यही से लगा दिया, यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ऐसे। ओके वेरी नाइस। यहाँ बेटा बात आ रही है समझ में? हाँ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो बताओ। मान लीजिए कि बेटा यहाँ मैं एक यहाँ 9 वोल्ट और यहाँ 1 ओम का रेजिस्टर, और यहाँ 10 ले लिया, और यहाँ 4 वोल्ट लेंगे, और यहाँ 2 ओम्स लेंगे। और बेटा इसको यहाँ ऐसे करेंगे कनेक्ट, किसके साथ? एक रजिस्टर लेंगे, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है, अच्छा सा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छा सा, लेकिन टफ नहीं है, मजेदार है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो यहाँ 8 ओम्स के साथ रेजिस्टेंस क्या ले ली मैंने? यहाँ वो 8 ओम। क्वेश्चन है, ये नेटवर्क है, यहाँ क्या बेटा ले ली मैंने जल्दी, ये एक बैटरी जिसका ईएमएफ 10 है और इंटरनल रेजिस्टेंस और 2 ओम्स है, दूसरी बैटरी जिसका 9 वोल्ट है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और तीसरी बैटरी है यहाँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ईएमएफ है 4 वोल्ट। और ये किसके साथ ही नेटवर्क कनेक्ट है यहाँ बेटा? 8 ओम्स के साथ। नो बट आई हैव टू फाइंड, क्वेश्चन इफ दिस इज लाइक, अगर ये नेटवर्क है, फाइंड, क्या मालूम करो? पहले मालूम करो E इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, दूसरी बात क्या करो मालूम? R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, और तीसरी बात क्या करो मालूम? करंट थ्रो, I थ्रो का किस थ्रो? 8 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रो 8 ओम रेजिस्टेंस, किस पे मालूम करो? क्या करो? ये क्वेश्चन है। 3 पहले इस सर्किट की इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, और इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, और फिर करंट निकालो 8 ओम्स में कितनी पास हो रही है। यह क्वेश्चन बेटा। ओके वेरी नाइस, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात बेटा नहीं है। तो देख लो क्या करेंगे, देख लो बेटा, आप देख लो बेटा, देख लो शक्ल बनाई, हाँ बनाई। देखो आप क्या करेंगे, देखो बेटा, देखो क्या करेंगे। तो पहले देख लो बेटा, यहाँ सिंपल सोल्यूशन है इसका, यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन इसका देखो बेटा क्या है, ऐसे ये इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड सेम है ना, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव भी आपस में कनेक्टेड है, तो ठीक है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव के साथ और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ साइन कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी दिखाएंगे ना न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सीधे पता है इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है बेटा? देखो यहाँ ये याद है, ये याद होना चाहिए। E इक्विवेलेंट होता है बराबर E1/R1 प्लस E2/R2, 2 सेल के लिए, डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, और R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ये याद है,
याद है कंबाइन नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए मैंने निकाला है ना बेटा, यहाँ न्यूमेरिकल्स करने हैं, जबान याद करना था मैंने इस वक्त कहा था। देखो बेटा क्या है, वेरी इजी। अब देखो बेटा तमाशा क्या करेंगे, इन दो सेल का ये सेल और ये, मान लीजिए इसका ईएमएफ E1 है और बेटा इसका R1 ये, इसका E2 ये और इसका ये R2, और ये मान लो ये E3 और ये क्या है ये R3, सॉरी ये E3 और बेटा ये क्या है ये R3 है। आप देखो तमाशा, सी ना सोल्यूशन यहां भी लिख सके हैं, सोल्यूशन ऐसे मेरी, चलो यहां सोल्यूशन यहां लिखेंगे। देखो बेटा इन दो सेलों का ये जो पैरेलल में है, ए इक्विवेलेंट जो पैरेलल में है, ऐसे पैरेलल में इनका ये इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, A1 R1, E1 कितना है 10 बाई R1 कितना है 2 प्लस E2 कितना है 9, R2 कितना है बेटा 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बेटे किसके बराबर, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो बेटे ये किसके बराबर है 9 बाई 1, तो ये 5 प्लस 9, 9 बाई 1 तो 9 ही है, डिवाइड बाई 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो ये किसके बराबर है ये 3 बाई 2 के बराबर, किसके बराबर 3 बाई 2, तो 9 प्लस 5 प्लस 9 कितना आएगा 14 बाई 3 बाई 2, और वो किसके बराबर आएगा 14, ये ज़रब हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई 3, तो कितना आया बेटा बताएं, कितना आया ईएमएफ, यहाँ ईएमएफ ठीक आया नहीं है, पहले का क्या 10 बाई 2, दूसरे का 9 बाई 1, और यहाँ के लिखो 1 बाई 2, फिर 1 बाई 1, ये 2 5 जार 9 5 14 आ गया बेटा, 2 1 जार 2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, 2 3 बाई 2, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा 2 ऊपर जाएगा, और ये किसके बराबर ईएमएफ बताओ, बता क्या हो यहाँ, कुछ आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन यहां क्या हुआ, अरे क्या हुआ, देखो 1 मिनट अगेन, 10 बाई 2, 2 5 जार 10, 9 बाई 1, ओके, तो 6 तो नहीं है ना बेटा, ये 6 तो नहीं है ना, ये कितना है, अरे ये 6 है, 6 है, 6 ले लो, 6 ले लो बेटे, ये 6 ले लो, क्वेश्चन में गलती हुई ना, यहाँ न्यूमेरिकल थोड़ा टफ बन जाएगा, 6 वोल्ट से, ओके, ये जेई में एक बार है, इसीलिए मैं, वरना में डाटा से कुछ लेना नहीं है, डाटा के बगैर कंसेप्ट क्लियर होना, लेकिन इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना, ये 6 वोल्ट बैटरी लेना बेटे, कितनी लेना 6, तो ये किसके बराबर है 6, तो मैंने 10 लिया था, नो प्रॉब्लम, यहाँ 6 लेना बेटा, 6 मैंने, ये जेई में आई थी क्वेश्चन, तो 6 बाई 2 प्लस 9 बाई 1 बेटा क्या लिखा है यहाँ मैंने, ओके वेरी नाइस, यहाँ 2 3 जार 6, तो कितना आएगा यहाँ, देखो बेटा ओके, ये 6 है, कोई मैंने 10 के बजाय क्या लिखा बेटा 6, नो प्रॉब्लम, देखो बेटा 6 बाई 2, E1 बाई 2 और E2 बाई दिस, दैट इज 9 बाई 1, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल, ये तो ये किसके बराबर आएगा आप बेटा, देखो किसके बराबर, अब 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 प्लस 9 बाई 1 9, और डिवाइड बाई 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, तो ये 3 बाई 2 आएगा बेटा, किसके बराबर, ये किसके बराबर आएगा, हम देखो बेटा 9 प्लस 3 इज 12, इनटू 3 बाई 2 क्या आएगा 2 बाई 3, हो जाएगा ना इसका रिवर्स बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो कितना आएगा 8 वोल्ट, तो इन दोनों का क्या आएगा 8 वोल्ट, क्या है बेटा इन दोनों का 8 वोल्ट, क्या है इन दोनों का 8 वोल्ट, देखो बेटा ऐसे लिखेंगे बेटा, ए पैरेलल इन दोनों का कितना आया, ये आया 8 वोल्ट, ई इक्विवेलेंट में, ई इक्विवेलेंट लेकिन किस में पैरेलल में, दो सेल का, और आर इक्विवेलेंट क्या आएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट है ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट किसी बात है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इनका इस सेल का ये आपस में पैरेलल है, तो 1 बाई आर इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वो किसके बाद आर इक्विवेलेंट किसके बाद आएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो R1 किसके बराबर है बेटा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, वो आएगा 2 1 जार 2 डिवाइड बाई 3, कितना है बेटा आर इक्वलेंट कितना है 2 बाई 3 ओम्स, कितना है 2 बाई 3 ओम्स, ओके वेरी नाइस, टेंशन वाली बात नहीं, तो कितना है बेटा, अब इन दो सेलों को मिलाए के हम एक ही सेल बनाएंगे, इन दो को मिलाकर एक ही सेल बनाएंगे, देखो बेटा कैसे 2 बाई 3 ओम्स याद रहा, और 8 वोल्ट क्या है बैटरी है इन दोनों की, क्या है 8 वोल्ट, याद रखना बेटा, ये याद रखना
E इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, इन दोनों का E इक्विवेलेंट कितना आया, इन दोनों का E इक्विवेलेंट वो आया 8 वोल्ट। इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आया, वो बेटा आया 2/3 ओम्स। कितना आया, 2/3 ओम्स। देखो अब इनके बदले में एक ही सेल लूंगा, combining to these two cells and make a single cell whose equivalent EMF, whose EMF is equal to the combine of the two and whose resistance is equal to the net of the two। ओके वेरी नाइस, यहां बनाऊंगा एक सिंगल से, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव यहां तो पॉजिटिव लेंगे, यहां नेगेटिव नेगेटिव। अब ये दोनों की इक्विवेलेंट है और एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये और ये की, तो बेटा यहां ऐसे ले लिया मैंने, कोई अब बात आई समझ में, ये E इक्विवेलेंट है। E इक्विवेलेंट कितना है इसका, कितना है बेटा 8 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट इसका कितना है बेटा 2/3। और बेटा यहाँ क्या है, यहाँ इसके साथ आप कनेक्ट, ये दोनों आप किसके साथ कनेक्ट है, ये आप सिंगल है, मैंने इसको सिंगल के साथ रिप्रेजेंट किया, और यहाँ ये किसके साथ, इसके साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बेटा, और इसको यहाँ ये कितने ओम्स है, यहाँ बेटा 8 ओम्स के साथ, कितने ओम्स के साथ, यहाँ बेटा कितने ओम्स के साथ ये कनेक्ट है, ये बेटा है कितने ओम्स 8 ओम्स, 8 ओम रजिस्टर के साथ ये कनेक्ट है। देखो अब इसका कितने है, इसका ये 2 ओम्स है बेटा इसका रेजिस्टेंस, और इसकी कितनी है, इसके 4 वोल्ट। लेकिन एक बात है, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, कनेक्शन तो पॉजिटिव, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के साथ नेगेटिव और तीसरे का पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहां नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज रॉन्ग कनेक्शन। तो ऐसे से क्या होगा बेटा, ऐसे कनेक्शन से क्या करेंगे, रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं कहेंगे, लेकिन क्या रूल क्या है, जब नेगेटिव नेगेटिव तो करंट इसमें ड्रा हो रही है, इसमें ड्रा हो रही है, देख रहा करंट इसमें ड्रा होगी, क्यों, क्योंकि ये देखो बेटा ये 8 वोल्ट से 4 वोल्ट। लेकिन बेटर तरीका ये है कि अगर E1/R1 एक सेल का ग्रेटर देन है E2/R2, तो इस सेल की वोल्टेज इस वक्त पॉजिटिव लेना और इस सेल की वोल्टेज इस वक्त नेगेटिव लेना। बट इफ अगर यही E1/E2/R2 इज ग्रेटर देन E1/R1, तो इसी की वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज लेनी, या EMF इसका क्या लेना बेटा पॉजिटिव, EMF लेना पॉजिटिव, EMF इसका पॉजिटिव लेना, और बेटा इसका EMF क्या लेना, इसका EMF बेटा लेना नेगेटिव। लेकिन कब, E2/R2 निकालो बेटा, अगर E2 देखो ये इसका कितना है 8/2, ये ज्यादा है, और देखो क्या है यहाँ 4/2, 2 2 4, तो यहाँ E/R रेशियो जो है ना 4/2 है, 2 2 R 4 तो 2 है, तो 2 है, लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 8/2/3, ये 3 ऊपर जाएगा 3, तो यहाँ नीचे तो 2 4 8, तो ये 12 है 12, तो इसका ज्यादा है E/R रेशियो, इसका कम है, तो इसको पॉजिटिव ले लो और इसको नेगेटिव, इसका मतलब है इसमें करंट निकलेगी और इसमें एंटर हो जाएगी। बात आई समझ में, बात आई समझ, इससे करंट ड्रा, ऐसे करंट ड्रा और इस सर्किट में ऐसे ऐसे ड्रा नहीं हो जाएगी, ये ड्रा नहीं करेगा, ये ड्रा करेगा, और यहाँ क्या, यहाँ एंटर हो जाएगी पॉजिटिव से, तो ये चार्ज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये चार्ज हो जाएगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगी, क्यों, ये किस रेशियो पर डिपेंड E/R1, कि नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव ले लो बेटा, ये क्या ले लो नेगेटिव। तो बताइए नेट EMF क्या है, यहाँ नेट EMF इन दोनों के लिए क्या है, नेट EMF इनके लिए नेट EMF E, दैट इज E इक्विवेलेंट 8 वोल्ट माइनस कितने 4 वोल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेट, तो E नेट क्या आया, दैट इज 4 वोल्ट। तो व्हाट इज नेट EMF ऑफ दिस सर्किट 4 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट क्या है, R ये है, ये सीरीज में 2 and 2 दिस R एंड दिस R, ये इसकी इस R इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये R इक्विवेलेंट, ये बेटा यहाँ देखो, ये E इक्विवेलेंट है 8 वोल्ट, और ये इसका R इक्विवेलेंट है बेटा कितना 2/3 ओम्स। अब इसका और इसका क्या है, सीधे लिखो, ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट बेटा वो आएगा 2/3 + 2, वो किसके बराबर आएगा 3 2 6 6 + 2 दैट इज 8/3, कितना आया 8 ओम्स। तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इनका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखो बेटा इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखो बेटा, देखो बहुत आसान, देखो बेटा क्या है। अब इन दोनों का भी इक्विवेलेंट बनाऊंगा, लेकिन इन दोनों के इक्विवेलेंट का EMF कितना है बेटा 4 वोल्ट यहाँ, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसी बेटा इसके ये एक्सटर्नल रेजिस्टर कितना ओम्स है बेटा, ये 8 ओम रजिस्टर है, ये वाला ये 8 ओम रजिस्टर है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन करके कितना है नेट EMF कितना आया 4, ये 4 वोल्ट है। और बेटे इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इन दोनों की कम की सीरीज में, वो कितनी आई है 8/3 ओम्स। ये बैटरी की तरह काम करेगी, ये बैटरी दैट इज दिस इज नाउ इक्विवेलेंट बैटरी, दिस इक्विवेलेंट बैटरी ऑफ ऑल द बैटरीज ऑल द सेल्स इज 4 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर, लेकिन ये किसके साथ है 8 ओम्स के साथ। बता अब I किसके बराबर आएगा, I through 8 किसके बराबर आएगा, अब टोटल I इज इक्वल टू टोटल EMF
बाय टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। बताओ किसके बराबर आएगी? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है बेटा? टोटल ईएमएफ, अरे वो तो 4 वोल्ट है। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 8 एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, कितनी है? 8/3। किसकी बराबर आएगी? 4। 8 3 24 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। ये आई बात समझ में? यहाँ डिवाइड 1 किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जरा दे दिया। देखो बेटा क्या है, देखो सीरियस स्टूडेंट्स, ओके, वेरी नाइस, वेरी इजी। देखो क्या है बेटा, 4/32/3, लेकिन 3 ऊपर जाएगा। 4 1 4 8 32, तो 3/8 कितनी एम्पियर्स? हाउ मच एम्पियर्स? कितना पास हो जाएगी इस 8 रजिस्टर में? कितना हो जाएगी पास? कितना पास? यहाँ आई कितना चलेगा? 3/8 एम्पियर इसमें फ्लो हो जाएगी। सो व्हाट करंट विल पास थ्रू 8 ओम रजिस्टर, दैट इज 3/8। तो होप यू हैव गॉट दिस। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट, क्योंकि टाइम कम है, एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ट्राई कर लो घर में। यहाँ खास ख्याल रखना एक पॉजिटिव नेगेटिव का, कि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्शन है, पॉजिटिव है, ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस। कैसा लगे बेटा आपको? ये बहुत आसान। अब यहाँ बेटा आखिरी पॉइंट, आखिरी क्वेश्चन लेंगे, एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, छोटा मोटा सा क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए। देखो बेटा क्या है, देखो सी डियर हियर द लास्ट क्वेश्चन हियर। ओके, वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा क्या है, एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन लेंगे यहाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस, सी डियर। तो बेटे क्या क्वेश्चन है यहाँ? ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा। यहां लेंगे एक रेजिस्टर, सी डियर स्टूडेंट्स, यहां एक 10 ओम की बैटरी और यहां रेजिस्टेंस 10 वोल्ट की बैटरी, सॉरी, और 2 ओम रेजिस्टेंस। बेटा यहां करेंगे कनेक्ट इसको ऐसे, एक और कनेक्टेड, लेकिन यहां इसका नेगेटिव और इसका क्या है? पॉजिटिव। अगेन आप रिवर्स है, आप पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है। यहां बेटा क्या है? ऐसे, लेकिन इसका भी कितना लेंगे? 2 ओम्स, ठीक है ना? 2 ओम्स इसका भी। और मान लीजिए कि ये कितनी वोल्ट है? 6 वोल्ट। यहां बेटे एक और लेंगे ऐसे, ठीक है ना बेटा? आई बात समझ में? आई या नहीं आई बेटा समझ में बात? ओके, वेरी नाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। यहां करेंगे, देखो बेटे क्या है, यहां करेंगे कनेक्ट 6 वोल्ट और 1 ओम यहां कनेक्ट करेंगे बेटा ऐसे। 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट ईएमएफ, और यहां 10 वोल्ट, और यहां 2 ओम्स, और यहां बेटा देखो ये पॉइंट है ए और ये कौन सा पॉइंट है बी। बेटा इन दोनों के दरमियान आप क्या करो? इफ क्वेश्चन इज दिस, लेकिन यहां खास क्या है? यहां नेगेटिव है, यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं क्वेश्चन, बाकी ये आसान है। फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ करो, बस इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट, बस इतना ही करो। अगर कहीं आए तो ये एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ यहां कनेक्ट होगा, एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ, वो भी क्वेश्चन बढ़ाएंगे ना, ये डिपेंड करता है अपॉन यू। लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, फिर नेटवर्क बढ़ाएंगे यहाँ नेटवर्क। लेकिन पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको आना चाहिए। ओके सीरियर, तो क्या करेंगे बताइए? क्या इन दोनों का क्या करेंगे बताइए? क्या बताओ? करंट इसमें निकलती है या इसमें? ये क्वेश्चन तो क्या है, कम देखो बेटे क्या है, 1000 क्वेश्चन से बेहतर है कि कम क्वेश्चन किए जाए, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। करो जितने क्वेश्चन इतने करो, लेकिन ऐसे करो कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज न्यूमेरिकल, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर आपका ज्यादा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, अगर कम ही न्यूमेरिकल करोगे, तो कम न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन क्लियर होना चाहिए हर चीज। ओके वेरी नाइस सी डियर। तो यहाँ क्या है? यहाँ पॉजिटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव किसके साथ? नेगेटिव। आप करंट इसमें आ रहे हैं, इसमें ड्रा हो रहे हैं, इसमें, ये तो सोचिए आप क्या निकालें। देखो बेटा आप इसका E/R, ये E1 मान लीजिए, R1, ये E2, ये R2, आप इसका कौन सा रेशियो निकालिए? E1/R1। देखो क्या है E1/R1, वो 10/2 है, वो किसके बराबर है? दैट इज 5। अब इसका क्या है? E2/R2 कितना है? वो किसके बराबर है? 6/2 एंड दैट इज 3। तो किसमें आ रही है? शाबाश, किसमें करंट है? ये ज्यादा है, ये करंट ज्यादा है, ये कम रेशियो है, तो यहां करंट ड्रॉन हो रहा है, लेकिन यहां करंट क्या हो रहा है बेटा? यहां करंट एंटर हो रही है, यहां ड्रा नहीं हो रही। तो इसका पॉजिटिव लेना ही है, और इसका ईएमएफ क्या लेना? नेगेटिव। आई बात समझ में है? इसका ईएमएफ क्या लेना? पॉजिटिव, इसका क्या लेना? नेगेटिव।
वरना कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके वेरी नाइस, यही खास बात थी। क्या रेशो निकालो, ई बाई आर रेशो। जिसके ई बाई आर रेशो ज्यादा हो इसको पॉजिटिव ले लो, जिसके ई बाई आर रेशो लेस हो इसका क्या ले लो, नेगेटिव। इसका क्या ले लो, इसका ई बाई आर 10/2 दैट इज 5 ये ज्यादा है, 6/2 2 3 6 ये कम है, तो ये यहाँ करंट ड्रा हो जाए लेकिन यहाँ एंटर हो जाए, जिसमें एंटर हो जाएगी ईएमएफ नेगेटिव और इसे ईएमएफ इसका क्या पॉजिटिव हो जाए। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप पता है सोल्यूशन। अब इन दो का इक्विवेलेंट सर्किट लो, इनका दो यहाँ ड्रा करेंगे सर्किट, नहीं यहाँ तो है ही। अब देखो बेटा क्या है सोल्यूशन, क्या करें ऐसे, चलो करेंगे, यहाँ लिखेंगे जल्दी। ये है ये है ये है ये है ये है ये है दोस्तों ऐसे, ये इसका नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, और ये है और ऐसे। लेकिन बेटा यहाँ क्या है, ये और है और ये एक सेल है यहाँ और ये ऐसे। ये 6 वोल्ट की है और ये 1 ओम है, और बेटा ये कितनी है 10 वोल्ट की है, और ये कितना है 2 ओम, और ये कितना है 6 वोल्ट, और ये कितना है 2 ओम, और यहाँ है ए और बी के दरमियान। ए और बी के दरमियान क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए और बी के दरमियान ए एंड बी के दरमियान निकालना है, ये ए एंड बी के दरमियान आर इक्विवेलेंट। देखो क्या है, अब इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। अब क्या है, यही है ना सोल्यूशन, आपको पता है क्या है, पता है आपको फॉर्मूला पता है ना, ये पैरेलल में दोनों, इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालो। ए इक्विवेलेंट किसके बात है, ये इक्विवेलेंट है 1 E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइड बाय E1 by R1 प्लस सॉरी 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये फार्मूला पता होनी चाहिए। तो क्या है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ ये दूसरा वाला माइनस है, क्यों, क्योंकि यहाँ करंट ड्रा हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, एंटर हो रही है। नहीं यहाँ ऐसे यहाँ ड्रा हो रही है, लेकिन यहाँ ऐसे आ रही है, यहाँ इस पे एंटर हो रही है, इसीलिए नेगेटिव, यहाँ एंटर हो रही है। आई बात, देखो क्या है अब सोल्यूशन इसका, देखो बेटे क्या है, देखो सोल्यूशन क्या है। तो इसका मतलब है यहाँ करंट जा रही है, यहाँ करंट जा रही है, यहाँ करंट जा रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ ड्रा हो रही है लेकिन यहाँ एंटर हो रही है। ये पॉजिटिव है इसके लिए ड्रा, लेकिन इसके लिए चार्ज, इसके लिए डिस्चार्जिंग, इसके लिए चार्जिंग, लेकिन करंट यहाँ आ रही है और यहाँ जा रही है। थोड़ा ये समझ लो, ये पता होनी चाहिए, यही बात है यहाँ फिजिक्स में। देखो बेटा क्या है, अब इसका और इसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट E1 by R1 10/2 प्लस E2 by R2, लेकिन माइनस लिखो यहाँ, माइनस 6/2 डिवाइड बाय 1 by R1 by 1/2 प्लस 1/2 1 by R1 प्लस 1 by R2। ओके आई बात समझ में, यहाँ 6 वोल्ट से यहाँ 6 वोल्ट है, तो 10/2 प्लस माइनस 6/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 है ना, 1 बेटा 1/2 प्लस 1/2 कितना है 1। तो यहाँ बेटा 10 यहाँ डिवाइड है ना सेम, 10 माइनस 6 कितना आ गया 4/2 डिवाइड बाय 1। वो किसके बाद है 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये 2 आ गया। कितना आ गया इक्विवेलेंट, इन दोनों का कितना आ गया 2, क्या आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट 2, ठीक है ना। दोनों का इक्विवेलेंट क्या है बेटा 2, तो यहाँ लिखेंगे इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन ये किसकी साइन आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव निकला है, तो इसके यहाँ लिख रहे हैं ये पॉजिटिव, यहाँ ये इसका नहीं लिख रहा है, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव लिख रहा है, ये वाला ये नेगेटिव है बेटा, ऐसे लिखो ऐसे और ऐसे। ये है कितना है आप, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया है, ये इक्विवेलेंट इन दोनों का आया 2 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट निकाले, आर इक्विवेलेंट तो किसके बराबर बेटा आएगा, ये आर इक्विवेलेंट निकालो। पहले इसका क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। एक्चुअली क्या होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट होता है बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 दोनों सेलों का। लेकिन R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 कितने हैं 2, R2 कितने हैं 2 2 प्लस 2 2 2 जार 4 2 2 जार 4 2 प्लस 2 का 4, तो ये क्या 1 ओम, कितना है इसका 1 ओम, ये कितना है 1 ओम। लेकिन ये कौन सा पॉइंट है बी, ये इन दोनों का ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इन दोनों का ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है ना। अब यहाँ इसके साथ क्या है बेटा, इसके साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ देखो इसके साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ ये माइनस और यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट। देखा बेटा आया समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ में। ये इक्विवेलेंट है 2 वोल्ट और ये आर इक्विवेलेंट है कितना 1 ओम इसका इस सर्किट का। यहाँ कौन सा पॉइंट है बी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरे की, ये इसकी है, ये 1 ओम है इसकी और ये कितनी है 6 वोल्ट है। अब क्या है निकालो आप इनका इक्विवेलेंट, इनका भी इक्विवेलेंट निकालना आएगा, निकालो। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का खास ख्याल रखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ तो नो प्रॉब्लम, यहाँ भी करंट ड्रा हो रही है, यहाँ भी ड्रा हो रही है, तो करंट यहाँ आ रही है, ऐसी करंट आ रही है। ओके वेरी नाइस,
ये क्या है ईएमएफ इसका 6, इसका ई कितना है 6, तो बताए नेट ईएमएफ कितना है, ये सीरीज में है इस वक्त, ये सीरीज में है, तो E1 प्लस E2 लिखवाना है E1, लेकिन E1 कितना है, ये 6 वोल्ट और ये कितना है प्लस 2 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस है, ये रॉन्ग कनेक्शन नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। ओके, तो कितना हो गया 6 प्लस 2, ये हो गया 8 वोल्ट। आई बात समझ में? तो नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बेटा है ना ये सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 आएगा सीधे, R1 प्लस R2 वो किसके बराबर 1 प्लस 1 2। अगर कोई करंट भी कहेगा कितनी करंट यहाँ ड्रा हो रही है, तो सीधे यहाँ निकाल सकते हैं ना इजीली, 8/2 दैट इज 4। लेकिन निकालने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है, तो ओके वेरी नाइस। तो ये 2 ohms है, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज 2 ohms and A equivalent is बेटा कितना है 8 volts। Okay, hope you have got this. Inshallah I will meet you next time. Till then, may Allah bless you. Have a nice day. Okay, very nice.